آج کا جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اس کا موضوع ہے مسلمان کے سارے اسکالر سے، سارے جانکار سے 3 سوال، اور اس کا جواب بھی ہم آپ کو سامنے میں کلیئر کر دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مسجد نبوی میں آمین جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو کیا وہ آمین مقتدی زور سے بولتے تھے یا آہستہ؟ دوسرا سوال کہ سورہ رحمان میں جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں مقتدی کو کیا بولنا چاہیے؟ تیسرا سوال کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے 8 اسٹیپ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی ایک کا بھی آپ انکار کر دیجیے گا تو آپ مکمل مسلمان نہیں ہیں۔ اس کا جواب آپ اگر معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں معلوم ہے تو ہم اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر کہ ہم نے پہلا سوال کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے تھے مسجد نبوی میں تو مقتدی آمین زور سے بولتے تھے یا آہستہ؟ اس کا جواب ہے کہ اگر قرات زور سے ہوتا تھا تو آمین بھی جو ہے ضالین میں جو ہے زور سے بولا جاتا تھا۔ اگر قرات آہستہ کا تھا جس نماز میں، وہاں پس میں آمین آہستہ ہی بولا جاتا تھا۔ اب پوچھیے گا کہ کچھ ہمارے سنی بھائیوں میں جو ہے بہت زیادہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ آمین زور سے نہیں بولنا چاہیے، اس کا کارن کیا ہے؟ دیکھیے الحمد و شریف جو آیت ہے وہ بہت ہی پاورفل آیت ہے، اور یہ آیت کسی نبی کو نہیں ملا سوائے میرے نبی کے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ الحمد و شریف کا پہلا بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پہلا پردہ کھلتا ہے۔ الرحمن الرحیم دوسرا پردہ کھلتا ہے۔ مالک یوم الدین تیسرا پردہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھا پردہ، انعمت علیہم پانچواں پردہ، غیر المغضوب علیہم چھٹا پردہ، ساتواں میں جو ہے وَلَضَّالِّین ساتواں پردہ کھل جاتا ہے۔ ساتواں پردہ کھل جاتا ہے تو جہاں یہ قرات ہو رہا ہے، جہاں الحمد شریف پڑھا جا رہا ہے، وہاں سے لے کر کے عرش کا زنا حجاب ہٹ جاتا ہے، اور جب پردہ کھلتا تھا تو جتنے بھی عرش سے لے کر کے جہاں تک فرشتے ہیں وہ زور سے آمین بولتے تھے، زور کا قرات میں آمین آمین آمین، یا آہستہ قرات میں بھی بولتے ہیں، وہ تو سب سنتے ہیں نا، تو وہ لوگ آمین بولتے تھے۔ اسی لیے حکم تھا جو قرات زور سے ہوتا تھا اس میں جو ہے آمین زور سے بولنے کا، تاکہ فریکوینسی جو ہے جو آپ کا آواز اور فرشتوں کا آواز میچ کرے، تو فضا میں ایک نور کا جو ایک الگ کیفیت طاری ہوتا تھا، جس کے کارن مسجد نبوی کا جو ہے دیوار جو کچے کی تھی تو چرکتا تھا، آمین کی آواز سے پھٹتا تھا۔ جواب ہے یہی کہ زور سے قرات کا زور سے آمین، آہستہ قرات کا آہستہ آمین۔ دوسرا سوال ہم نے کیا تھا کہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب کیا ہے؟ مقتدی کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے
कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को सूरह रहमान को जिनों के बीच जब पढ़ रहे थे तो जिन लोगों ने जवाब दिया था कि हाँ ए मेरे मौला, हम तेरे रहमत को कबूल करते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी बनी आदम को भी चाहिए जब भी सूरह रहमान पढ़ा जाए तो आहिस्ता से हर मुक्तदी को दिल में बोलना पड़ेगा कि या अल्लाह, हम तेरी रहमत को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अब अय्या रब हुकूमत का जवान, जैसे ही अल्लाह फरमाता कि तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, उसी टाइम में अल्लाह का नेमत का आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। और एक सवाल इसमें है, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने अपने आप को रहमान बोल के क्यों मुखातिब किया? बहुत सा नाम था, 99 नाम था। अल-गफूर, सबसे ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला। अर-रहीम, यहाँ ख़ास बंदों पर जो है रहम करने वाला। करीम, बहुत नाम है अल्लाह ताला का। लेकिन रहमान के मतलब होता है कि रहमत आम है हर को, चाहे वो काफिर हो या मुसलमान हो, नमाजी हो या बेनमाजी हो, फरमा बरदार हो या नाफरमान हो, हर को अल्लाह ताला रहमत देगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने आप को सूरह रहमान में रहमान बोल कर क्या करें मुखातिब किया है। अगर वहाँ पर में कोई और नाम हो जाता तो रहमत सबको नहीं मिलता। रहमत जो है सिर्फ महदूद रहता अल्लाह के फरमा बरदार बंदों के ऊपर। रहमान में सबको रहमत है। इसका यही वजह है जो सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने अपने आप को रहमान से मुखातिब किया है। तीसरा सवाल हमने किया था कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए 8 स्तंभ, 8 सीढ़ी, 8 स्टेप जो है क्या है। देखिए, सबसे पहला नंबर कि 5 तो आप सबको ही मालूम है कि 5 को जब तक फॉलो नहीं कीजिएगा तब तक आप मुसलमान में दाखिल नहीं होइएगा। वो 5 क्या चीज़ है? सबसे पहला नंबर ये तौहीद, कलमा तौहीद का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा सच्चा कोई माबूद नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे और रसूल हैं। दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा हज, पाँचवा जो है ज़कात। 3 बचा, 3 जो है उसी में जो है कुरान का बात को भी फॉलो कर लीजिएगा 3 में, और उसी 3 में आप जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को और उनकी सुन्नत को भी फॉलो कर लीजिएगा। तमाम नबियों को सुन्नत को भी फॉलो कर लीजिएगा। वही 3 जो है सबसे मेन बात है, मेन कोड वर्ड है। वो 3 क्या है ये आप लोगों को जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। वो 3 वर्ड है सब्र, शुक्र, तवक्कुल। अब बोलिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का है। अल्लाह ताला ने हर जगह पर सब्र और शुक्र और तवक्कुल को कुरान में भी यूज़ किया। आप पढ़िएगा गौर से, माने को तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, जब मेरा मुसीबत आपके ऊपर आए आपको सब्र करना होगा। अक्सर हम लोग सब्र में फेलियर मार देते हैं और नाशुक्री का बोल देते हैं। दूसरा बात है, कोई भी नेमत हमको मिलता है हम लोग शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। एक सांस भी जो हमको मिला है ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा नेमत है। इसका भी हर दिन हमको सुबह और शाम शुक्रिया अदा करना होगा। शुक्रिया हर वक्त, हर नेमत पर शुक्रिया आपको अदा करना होगा। तीसरा बात है कि तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन, आपको पूरा यकीन, ईमान जो है पूरा मजबूत रखना हो कि हाँ मेरा रब हमारा सब कुछ करेगा, वही मेरा करता रहता, वही मेरा उद्धार करता है और उसी पर मेरा यकीन है, उसी पर मेरा विश्वास है। इस चीज़ का ईमान आपके अंदर में जिंदा रहना चाहिए। हस्बुन मिनल्लाह व निअमल वकील, जिस तरीक़ा से इब्राहिम खलीलुल्लाह का सब्र यकीन था, सब्र में जैसा अय्यूब अलैहिस्सलाम आ गए है ना।
तो आपने सब नबियों का भी ये किया। शुक्र करना, नेमत का शुक्रिया अदा करना। हज़रत बहुत पैगंबर हैं, एक पैगंबर का नाम नहीं, जैसे जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है, ये सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते थे जितना उनको, इसीलिए इतना बड़ा उनको बादशाही मिला। सुलेमान अलैहिस्सलाम है, सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते थे नेमत का। यही बात है जो आपको हमने सवाल भी किया और आपका हम जवाब भी क्लियर किए। अगर कोई बात में अगर आप लोगों को किंतु परंतु लगे तो आप हमारे व्हाट्सएप में, आप हमारे इसमें यूट्यूब में जो है आप अपना कमेंट भेज सकते हैं, हम आपको फिर जवाब दे देंगे उसका। जय हिंद।